متحدہ عرب امارات کے نیوکلیئر پلانٹ پر ڈرون حملہ، پاکستان کی شدید مذمت۔ پاکستان کا UAE کی حکومت اور عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار، جوہری تنصیبات کو دانستہ نشانہ بنانا عالمی قوانین کے خلاف ورزی قرار۔ متحدہ عرب امارات نے ایٹمی پلانٹ پر حملہ جارحیت میں ایک نیا اضافہ قرار دے دیا۔ اماراتی صدر کے مشیر کے مطابق اماراتی شہریوں کے خلاف مجرمانہ عمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ UAE کو دبانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ سعودی عرب اور قطر کی امارات پر حملے کی شدید مذمت۔ ایران نے اسرائیل سے تعلقات بڑھانے پر متحدہ عرب امارات کو خبردار کر دیا۔ تہران کے صبر کی ایک حد ہے، امارات کو اسرائیلی سازشوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی کا UAE کو مشورہ، پیغام دیا کہ تہران نے امارات کے ساتھ تعلقات میں دوستی کا دروازہ بند نہیں کیا۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف جنگ سے متعلق مشاورت تیز کر دی۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم اور قومی سلامتی ٹیم کے اہم ارکان سے مشاورت مکمل کر لی۔ دوبارہ جنگ کی صورت میں پینٹاگون کی ایران میں توانائی اور انفراسٹرکچر سمیت مزید اہداف کو ٹارگٹ بنانے کی منصوبہ بندی۔ امریکی طیارے گولہ بارود لے کر اسرائیل پہنچ گئے۔ 24 گھنٹوں میں درجنوں امریکی کارگو طیاروں نے تل ابیب میں لینڈنگ کی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی طیارے جرمنی میں قائم منڈو سے اسلحہ لے کر پہنچے ہیں۔ اسلحے کی ترسیل ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ ایران کے لیے وقت گزر رہا ہے، ڈیل کے لیے جلد آگے بڑھے ورنہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ امریکی صدر نے تہران کو خبردار کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر امریکی پرچم کے عکس کے ساتھ مشرق وسطیٰ کا نقشہ شیئر کیا، جس میں سرخ تیروں کے نشانات ایران کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم روکنے کی وجہ سے پاکستان کی درخواست قرار، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا کہ پاکستان نے کہا کہ اگر پروجیکٹ فریڈم روک دیا جائے تو کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکنے پر اتفاق کیا گیا۔ امریکہ نے ایران کو مذاکرات کی بحالی کے لیے 5 شرائط بتا دیں۔ 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کی حوالگی کی شرط شامل، ایران کا جنگی ہٹ جانا ادا کرنے کا مطالبہ مسترد۔ ایرانی فوج نے امریکہ کو خبردار کیا کہ دوبارہ حملوں کی صورت میں تہران کا رد عمل زیادہ جارحانہ اور حیران کن ہوگا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ ناکہ بندی ختم کر دے اور اس سے پہلے کہ خلیج عمان امریکی افواج کا قبرستان بن جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے سرکاری ٹی وی سے بات چیت میں واضح کیا کہ ایران کے مسلح افواج مزید فوجی تصادم کے لیے تیار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے 90 منٹ طویل ملاقات۔ ایرانی صدر نے ایران پر حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے پر اظہار تشکر کیا اور واضح کیا کہ اسلامی ممالک کا اتحاد بیرونی طاقتوں کی مداخلت کو محدود کر سکتا ہے۔ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر باقر غالباف سے ملاقاتیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قطر کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ محمد بن عبدالعزیز الخلیفی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قطری وزیر نے جنگ میں پاکستان کے تعمیری کردار اور سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کے فروغ کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2 ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برطانوی برینٹ آئل $111 فی بیرل کا ہو گیا۔ امریکی تیل کی قیمت $107 پر پہنچ گئی۔ اقلیتوں کے خلاف سرگرم RSS شدید عالمی دباؤ میں آ گئی ہے۔ RSS نے ہندوتوا اور اقلیتوں کے خلاف تشدد کو فروغ دیا۔ رائٹرز کی رپورٹ میں ہندو دہشت گرد تنظیم کی قلعی کھول دی۔ RSS نے پابندیوں سے بچنے کے لیے عالمی لابنگ کا آغاز کر دیا۔ بھارتی عدالت نے 700 سالہ تاریخی مسجد کو مندر قرار دے دیا، جس کے بعد ہندو انتہا پسندوں نے مسجد پر قبضہ کر کے پوجا پاٹ شروع کر دی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان، کاروبار کے دوران 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,63,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی کا شکار۔
वजीर आजम ने विफाकी तरक्याती बजट का जायजा इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में विफाकी तरक्याती बजट के लिए तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम की मंजूरी से बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। सूबे में CNG सेक्टर को गैस की फराहमी की बंदिश का मसला हल करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है, आईनी हक से महरूम न किया जाए। खत का मतन। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। सार्फिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए रिलीफ के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर। समात कल होगी। दौरा अज़रबैजान के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाकू में तंदूर से रिवायती नान निकालने के फुटेज वायरल। सूबाई काबीना के अरकान उनके हमराह थे। मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम में वोटर्स की उम्र की हद 18 से बढ़ाकर 25 करने की बाज़गश्त। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने पहले वोटर्स की उम्र की हद बढ़ाने से मुतालिक तजवीज़ ज़ेर गौर होने का दावा किया, बाद में किसी भी तजवीज़ की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में हम पेशरफ। बानी PTI के वकील सलमान सख्तर ने अपीलों पर दलाइल की आखिरी मोहलत देने के अदालती हुक्म पर एतराज़ उठाया। वकील की मुलाकात न करवाने और वकालतनामों पर दस्तखत न करवा के देने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। मुबैना मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड का केस। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी किया। मुलजिमा को जेल कॉम्प्लेक्स में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साउथ के सामने पेश करने का हुक्म। नॉर्थ कराची सेक्टर 6 में काबिज़ीन ने नाले और रोड पर गैर कानूनी दुकानों और मकानात की तामीर शुरू कर दी। डायरेक्टर स्टेट एंड एनफोर्समेंट के पहुंचने पर मिल्कियती कागजात का दावा। KDA हुकाम ने आज कागजात के साथ तलब किया। और सिलहट टेस्ट पर बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स जारी। पाकिस्तान 5 विकेटें लेने में कामयाब। मुत्तहिदा अरब अमारात के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान का UAE की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। जौहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी प्लान पर हमला जारियत में एक नया इजाफा करार दे दिया। अमाराती सदर के मुशीर के मुताबिक अमाराती शहरियों के खिलाफ मुजरिमाना अमल का मुसहरा किया गया। UAE को दबाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। सऊदी अरब और कतर की अमारात पर हमले की शदीद मजम्मत। ईरान ने इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार कर दिया। तेहरान के सब्र की एक हद है, अमारात को इसराइली साजिशों से उलझना नहीं चाहिए। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई का UAE को मशवरा। पैगाम दिया कि तेहरान ने अमारात के साथ ताल्लुकात में दोस्ती का दरवाज़ा बंद नहीं किया। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ जंग से मुतालिक मुशावरत तेज कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म और कौमी सलामती टीम के अहम अरकान से मुशावरत मुकम्मल कर ली। दोबारा जंग की सूरत में पेंटागन की ईरान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मज़ीद अहदाफ को टारगेट बनाने की मनसूबाबंदी। अमरीकी तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंच गए। 24 घंटों में दर्जनों अमरीकी कारगो तैयारों ने तल अबीब में लैंडिंग की। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारे जर्मनी में कायम मंडू से असलहा लेकर पहुंचे हैं। असलहे की तरसील ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तैयारियों का हिस्सा है। ईरान के लिए वक्त गुजर रहा है, डील के लिए जल्द आगे बढ़े वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा। अमरीकी सदर ने तेहरान को खबरदार कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रू सोशल मीडिया पर अमरीकी परचम के अक्स के साथ मशरक़ वस्ता का नक्शा शेयर किया, जिसमें सुर्ख तीरों के निशानात ईरान की तरफ इशारा कर रहे हैं।
प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की वजह से पाकिस्तान की दरख्वास्त करार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया जाए तो किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तेफाक किया गया। अमरीका ने ईरान को मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत बता दी। 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम की हवालगी की शर्त शामिल। ईरान का जंगी हिट जाना अदा करने का मुतालबा मुस्तरद। ईरानी फौज ने अमरीका को खबरदार किया कि दोबारा हमलों की सूरत में तेहरान का रद्द-ए-अमल ज्यादा जारहाना और हैरानकुन होगा। ईरान ने खबरदार किया है कि अमरीका नाकाबंदी खत्म कर दे और उससे पहले कि खलीज उमान अमरीकी अफवाज का कब्रिस्तान बन जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने सरकारी टीवी से बातचीत में वाज़ेह किया कि ईरान के मुसल्लह अफवाज मज़ीद फौजी तसादुम के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से 90 मिनट तवील मुलाकात। ईरानी सदर ने ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने देने पर इजहार तशक्कुर किया और वाज़ेह किया कि इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बैरूनी ताकतों की मुदाखलत को महदूद कर सकता है। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ से मुलाकात है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक राबता। कतरी वज़ीर ने जंग में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सिफारती काविशों को सराहा। इसहाक़ डार ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मक़ासिद के फ़रोग़ के लिए अज़्म का अदा किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $111 फी बैरल का हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $107 पर पहुंच गई। अक़लियतों के खिलाफ सरगर्म RSS शदीद आलमी दबाव में आ गई है। RSS ने हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को फ़रोग़ दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में हिंदू दहशतगर्द तंजीम की कलई खोल दी। RSS ने पाबंदियों से बचने के लिए आलमी लॉबिंग का आगाज कर दिया। भारतीय अदालत ने 700 साला तारीखी मस्जिद को मंदिर करार दे दिया, जिसके बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद पर कब्जा करके पूजा पाठ शुरू कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। हनवर इंडेक्स 1,63,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी का शिकार। वज़ीर आज़म ने विफाक़ी तरक्याती बजट का जायजा इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में विफाक़ी तरक्याती बजट के लिए तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी से बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। सूबे में CNG सेक्टर को गैस की फराहमी की बंदिश का मसला हल करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है, आईनी हक़ से महरूम न किया जाए। खत का मतन। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। सार्फिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए रिलीफ के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर। समात कल होगी। दौरा अज़रबैजान के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाकू में तंदूर से रिवायती नान निकालने के फुटेज वायरल। सूबाई काबीना के अरकान उनके हमराह थे। मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम में वोटर्स की उम्र की हद 18 से बढ़ाकर 25 करने की बाज़गश्त। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने पहले वोटर्स की उम्र की हद बढ़ाने से मुतालिक तजवीज़ ज़ेरे गौर होने का दावा किया, बाद में किसी भी तजवीज़ की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में हम पेशरफ। बानी PTI के वकील सलमान सफ्तर ने अपीलों पर दलाइल की आखिरी मोहलत देने के अदालती हुक्म पर एतराज़ उठाया। वकील की मुलाकात न करवाने और वकालतनामों पर दस्तखत न करवा के देने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। मुबैना मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड का केस। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी किया। मुलजिमा को जेल कॉम्प्लेक्स में जुडिशल मैजिस्ट्रेट साउथ के सामने पेश करने का हुक्म।
नॉर्थ कराची सेक्टर 6 में काबिजीन ने नाले और रोड पर गैर कानूनी दुकानों और मकानात की तामीर शुरू कर दी। डायरेक्टर स्टेट एंड एनफोर्समेंट के पहुंचने पर मिल्कियती कागजात का दावा। KDA हुकाम ने आज कागजात के साथ तलब किया। और सिलहट टेस्ट पर बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स जारी, पाकिस्तान 5 विकेटें लेने में कामयाब।